مسیح کی محبت میں آپ تمام ویوز کو ایونجلسٹ ہنا رازی کا سلام۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس موقع کے لیے جو خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں پھر سے عنایت کیا کہ ہم مل کر خدا ان کی زندہ آواز کو سن سکیں اور سن کر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ زندگی کا بانی ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم جب اس کے پاس آئیں بڑے ایمان کے ساتھ تو کثرت کی زندگی پائیں۔ میں تمام ویوز کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں جو خدا ان کے کلام کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور اچھے بابرکت کومنٹس ہمیں دیتے ہیں، اور جو نہیں دیتے خدا ان کو بھی برکت دے۔ میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ضرور جب بھی آپ تک نئی ویڈیو پہنچتی ہے، نیا کلام خداوند کا آپ تک پہنچتا ہے تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ضرور آپ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام کو سیکھیں، کیونکہ یہ خداوند کا زندہ کلام یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہمیں زندہ کرتا ہے، خداوند کی زندہ آواز جو ہماری روح کو تر و تازہ دم کرتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں بحال کرتا ہے، اور مسیح یسوع دنیا میں آئے تاکہ وہ ہمیشہ کی ہمیں زندگی دے۔ اور جو ایمان رکھ کر مسیح یسوع کے پاس آتے ہیں، جو قبول کرتے ہیں اس کے کلام کو، جو اس کے متلاشی رہتے ہیں، جو اس کے پیار اور محبت کو ڈھونڈتے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں، وہ انہیں مل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن ملے گا انہیں کو جو خدا ان کے پاس آئیں گے، جو ایمان رکھیں گے، جو خدا ان کی آواز کو سنتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ لیکن جو رد کر دیتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم جب انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو مسیح یسوع نے اپنی زندگی کے دوران بہت سے لوگوں کو بلاہٹ دی اور کہا کہ میرے پاس آؤ، کیونکہ زندگی کا نور میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، حقیقی روٹی میں ہوں، حقیقی زندگی وہ ہے، اور سب کچھ جب وہ ہے تو پھر اسی کے پاس آنا لازمی ہے، کیونکہ سب کچھ خداوند کے پاس ہے۔ آج کا جو پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، آپ کی نظر پہنچایا جا رہا ہے، اس کا ٹاپک ہے ہمیشہ کی زندگی، اٹرنل لائف۔ ہمیشہ کی زندگی مسیح یسوع کے پاس ہے، ابدی حیات خداوند مسیح یسوع کے پاس ہے، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند نے میری اور آپ کی خاطر صلیب اٹھائی، خداوند نے فدیہ دیا اور اب وہ پھر سے آنے والا ہے۔ لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک دنیاوی زندگی ہے۔ ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ دنیا داری کی فکروں اور تردد میں ہے، دنیا کے کاموں میں صرف رہنا، مصروف رہنا ہے۔ لیکن جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ آواز کو اس کے کلام کی روشنی میں سیکھیں اور پڑھیں۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی ڈائری میں یہ حوالہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ بعد میں اس کو بغور مطالعہ کیجیے گا۔ خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے متی کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو۔ یہاں پر ایک شخص خداوند کے پاس آتا ہے اور وہ خداوند اور ان کے بیچ میں کیا بات چیت ہوتی ہے ہم آج جانیں گے۔ میں آپ کے سامنے مطالعہ کروں گی، یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا، تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو ہمیشہ زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے ان سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے ان سے کہا، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ اور اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سب پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ تو مسیح یسوع نے انہیں کیا جواب دیا؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و صبح بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کے میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا،
क्योंकि बड़ा मालदार था। पाक कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर आप सबकी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपने अपनी खिदमत के दौरान, अपनी ज़िंदगी के दौरान यकीनन इस बाब को, 19वें बाब को पढ़ा, इस वाक़े को भी सुना कि एक शख्स आता है और मसीह के पास गुफ्तगू करता है, कहता है कि हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता हूँ, और मसीह यीशु ने हमेशा की ज़िंदगी ही की तरफ ला रहे हैं। वो शख्स ज़िंदगी हासिल करना चाहता है और मसीह यीशु उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देना चाहते हैं। वजह क्या थी कि वो शख्स ने उस ऑफ़र को कबूल ना किया? क्या रीज़न था कि मसीह यीशु ने उसे कहा कि तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेच डाल और किनको दे दे? गरीबों को दे दे। लेकिन वो शख्स चला गया। हम हमेशा की ज़िंदगी तो हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दुआ भी ना करें, हम इबादत भी ना पूरी करें, हम चर्च भी ना जाएं, हम वो कुछ ना करें जो खुदावंद कहते हैं, हम वो ना करें जो हमारा खुदावंद कहता है, क्योंकि करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अंजील को फैलाना बहुत मुश्किल कठिन काम है। अमल करना बहुत बड़ी बात है जो हमसे नहीं हो पाता, जो ज़िंदगियों से नहीं हो पा रहा। और वो कौन सा ऐसा शख्स है जो ये करने नहीं दे रहा? वो मुखालिफ मसीह, वो इब्लीस है जो रोकता है, हमारी हमेशा की ज़िंदगी के पास जाने से हमें रोकता है, अब्दी बरकतें हासिल करने से रोकता है, खुदा के कलाम को अमल में लाने से रोकता है, ताकि वो हमारी ज़िंदगियों में आके हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील ना कर दे। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अजीज़ व्यूज़, देखिएगा कि मसीह यीशु ने से कहा कौन सी नेकी ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ। मसीह यीशु ने ऐसी नेकी करने को कहा जिसके इव्ज़ उसे आसमान की बादशाही में ख़जाने मिल सकते थे। उसके पास जो कुछ था वो मालो दौलत थी, उसके पास जो था वो उसका अपना बैंक बैलेंस था, उसके पास जो था वो दुनियादारी की दौलत थी, उसके पास जो था वो एक दिन ख़त्म हो जाना था। लेकिन जो मालिक दो जहान, जो बादशाहों का बादशाह उसको ऑफ़र कर रहा है, उसको दे रहा है, जो डील कर रहा है, लेकिन उसने कबूल ही नहीं किया, उस कलाम को, उस आवाज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो कैसी हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकता है? क्योंकि जो उसके अंदर समाया हुआ है, जो उसके अंदर है, वो उसको ये अपनाने ही नहीं दे रहा। और वो कौन है? वो इब्लीस है, वो दुनिया की मालो दौलत है, वो दुनिया की ऐशो इशरत है, क्योंकि वो किसी को देना ही नहीं चाह रहा। मसीह यीशु ने कहा दे, जिसके पास 2 कुत्ते हैं वो किसी एक को दे दे, जिसके पास है वो 2। मसीह देता आया है। लेना देने से क्या है? मुँह बारिक है। और खुदावंद के खादिम यही करते हैं, खुदावंद के चुने हुए लोग यही करते हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हम इस बात को जानेंगे और समझेंगे। मसीह यीशु ने उसके सामने हुक्मों को रख दिया। मसीह यीशु ने कहा कि हुक्मों को मान, और वह कहता है ये तो मैं बचपन से मान रहा हूँ, यानी कि ये तो मैं जवानी से शुरू किए हुए हैं, मैं मानता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, संडे स्कूल में भी मुझे पढ़ाए गए हैं। लेकिन ये नाकाफ़ी है कि हमें जो याद रहता है वो याद तक ही रहता है, हम उसे अपनाते नहीं हैं। मूसा की शरीयत में मूसा की मार्फत जो खुदावंद के हुकाम मिले वो तो हम याद रखते हैं, लेकिन जो हुक्म खुदावंद मसीह यीशु मालिक दो जहान दे रहा है, हम उस हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। वो क्या कह रहा है हमें? और आगे उसने क्या कहा कि गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? ख़जाना मिलेगा। उसने ये तो नहीं कहा ना कि तुझे आसमान पर वही दौलत मिलेगी जितनी दौलत तू देने लगा है ना, 5 लाख 6 लाख या जितना भी तू देगा उसके तुझे इतना ही मिलेगा। ये यहाँ पर नहीं लिखा। उसने कहा ख़जाना, और ख़जाने में मेरे अजीज़ बहन भाई बहुत कुछ हो सकता है, वो जो आपकी सोच में भी नहीं है, वो जो आप सोच नहीं सकते, वो जो हम दुनिया में रहकर हासिल नहीं कर सकते। इतनी मालो दौलत, इतनी सुकूनत वहाँ मिलेगी, इतनी बरकतें वहाँ मिलेंगी, और हमेशा की ज़िंदगी जिसके लिए आप मसीह के पास आए हैं, जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि ए उस्ताद मुझे बता कि मैं कौन सी नेकी करूं जिसके इव्ज़ मुझे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए, मैं कौन सा ऐसा काम करूं, मैं कौन सा ऐसी तेरा हुक्म को बजा लाऊं जिसके इव्ज़ तो मुझे हमेशा की ज़िंदगी दे दे। तो मसीह यीशु ने जो कुछ उसके पास ही था उसी को सामने रख दिया, क्योंकि वो आजमा भी रहा था, लेकिन वो आजमाइश में नाकाम निकला। वो नाकाम क्यों हो गया?
क्योंकि बड़ा मालो दौलत का मालिक शख्स था। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जाने इस बात को, अगर हम रूहानी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, हम रूहानी बरकतें हासिल करना चाहते हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी अपनाना चाहते हैं, हम अब्दी हयात में जाना चाहते हैं, तो हमें अपने जहन को रूहानी बनाना होगा, अपने दिल को रूहानी बनाना होगा। हमें आसमान की बादशाही को रूहानियत से देखना है। जब आप हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपकी जेब भी खाली होगी तो यकीन जाने आपके चेहरे पर शादमानी होगी, आपके दिल में एक सुकून होगा, क्योंकि आपके दिल में खुदा का कलाम है। आप खुदावंद के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं, आप खुदावंद की बात को सुन रहे हैं, आप अपने उस्ताद की बात को रद्द नहीं कर रहे। आपने वो बरकतें, वो राहत हासिल कर ली है जो खुदावंद आपको देना चाहता है। हालेलुया। तो जानिए, समझिए इस बात को कि ये हुक्म जो है, खून ना करना, जना ना करना, ये बहुत से छोटे बच्चों को संडे स्कूल में सिखाए जाते हैं ताकि बच्चे सीखें कि हमें मुआशरे में रहते हुए हमने इस पे अमल दरामद करनी है, अमल पैरा होना है। लेकिन एक हुक्म हमारे खुदावंद मसीह यीशु ने दिया, यानी कि उसकी बात को मानना। जब हम उसे ए खुदावंद कहते हैं और उसके कहे पे अमल नहीं करते, तो ये सब इबादतें हैं वो रायगा चली जाती हैं। हमारा दुआ करना रायगा चला जाता है, हमारा रोज़ा रखना बेमाने रह जाता है, क्योंकि हम उसकी बात को नहीं मान रहे। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मसीह यीशु ने कहा तुझ में कमी है, तुझ में अभी भी क्या है, कमी है। यकीनन इंसान होते हुए हमें बहुत सारी कमियां हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते, हम मुकम्मल नहीं हो पाते, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। लेकिन ये खुदा का ज़िंदा कलाम शाज़ोर बना देता है, ये कलाम खुदा का हमें सवार देता है, ये हमें कामिल बना देता है। क्या ही खूब होता जब वो ये कहता, ठीक है खुदावंद, मैं अपना सारा मालो दौलत बेचकर और गरीबों को बांट दूंगा, गरीबों को दे दूंगा, अब मैं तेरे पीछे हो देता हूँ। क्योंकि मालो दौलत देने वाला, बंगले गाड़ी देने वाला, दौलत देने वाला तो खुद मुझे अपने पीछे लेकर जा रहा है, न जाने वो मुझे कितनी बरकत देगा। तो बाज़ात हम कम अक्ल रखते हैं, हम जहन ऐसा रखते हैं कि हम वो छोड़ना नहीं चाहते। असल में हम अपने माजी को छोड़ना नहीं चाहते, उस अंधेरे से निकलना नहीं चाहते, ऐसी ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते जिसमें हमारी अपनी मर्जी होती है, हमारी अपनी ख्वाहिशात होती है, हमारी अपनी मर्जी होती है, हम अपने तौर तरीके से चलना चाहते हैं। हम वो ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, हम उससे भी छोड़ना नहीं चाहते, हम नई ज़िंदगी में भी चलना नहीं चाहते। तो फिर हम किसी फैसले पर आ नहीं पाते कि हम कौन सा फैसला करें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप खुदावंद के पास आए हैं, आप यीशु के पास आए हैं, तो हमारा उस्ताद, हमारा खुदावंद हमें एक हुक्म देता है, और हुक्म क्या है, सब कुछ गरीबों को दे दे और तू मेरे पीछे चल। आप उसके पीछे चलना चाहते हैं, आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो फिर आज से खुदावंद की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करना शुरू कर दें। आज उसे अपना लें, क्योंकि आज तो खुदावंद का कलाम आपसे बोल रहा है कि हमेशा की ज़िंदगी मेरे पास है, अब्दी हयात मेरे पास है, और खुदावंद ये सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद की इस आवाज़ को सुने, खुदावंद की इस कलाम को सुने, खुदावंद की इसकी बरकत को सुने, क्योंकि खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब इस शख्स ने अपनी अब्दी ज़िंदगी को, अपनी रूहानी ज़िंदगी को, अपने उस ख़जाना को उस बादशाह में इंटर होने से पहले ही सब कुछ गवा दिया है, तो आज आपने ऐसा नहीं करना। जब खुदावंद आपको बुलाता है, आप हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस ज़िंदगी से निकलना होगा जो ज़िंदगी मसीह यीशु को पसंद नहीं है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर आप सबकी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। हमेशा की ज़िंदगी मसीह यीशु के पास है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी में दाखिल होना है, पूरे ईमान से, पूरे दिल से उस पर ईमान रखकर। और जो हमारा खुदावंद कहता है हमें वो करना है, तो आप हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे, नहायत शादमान होंगे, अब्दी ज़िंदगी आपके पास होगी। तो इब्लीस आपको कभी गमज़दा नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। ये सब कुछ दुनियावी है, दुनियादारी के लिए है और इब्लीसी है। इब्लीस जब खुदा के कलाम पे अमल करने से रोकता है, तौबा करने से रोकता है, रास्तबाजी को पूरा करने से रोक देता है, तो जान जाइए ये इब्लीस की चाल है। उसके इरादों को फेल कर मसीह यीशु के कलाम को अपनाइए, हमेशा की ज़िंदगी पाइए, क्योंकि मसीह यीशु जल्द आने वाला है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आपकी सबकी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।